जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, फॉर द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। एज यू ऑलरेडी न्यू कि हमें जो है वो एक टास्क जो है वो असाइन हुआ है, दैट इज़ टू कंप्लीट द स्लाइड्स shared by the your instructor, and the topic is allocated for that is the intellectual property laws. Okay, so let's try how much material we are going to cover in this, and how we're going to understand the basic concepts, so that whenever in life we are going to use these terms, तो हमारे mind में उसका actual meaning जो है वो draft हो सके. Okay, so the broadly speaking, the outline we have to cover intentionally कि हमें जो है वो somehow ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, जिसमें से हमारे पास हमें ये देखना है कि आईपी बेसिकली क्या है, एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईपी हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वेंशन जो है वो क्या है, वर्ड पेटेंट हमने मे भी सुना हो, वो के क्या यूज़ होता है, पेटेंट ड्राफ्टिंग किसको कहते हैं, ठीक है. सो एंड द अदर थिंग इज़ हाउ टू गेट अ पेटेंट इन पाकिस्तान. ओके, सो इन लास्ट देयर आर फ्यू स्टैटिस्टिक्स, इफ वी विल हैव अ टाइम, सो वी विल सी के एट दैट टाइम जब ये स्लाइड्स जो है वो बनाई गई थी, उस टाइम तक जो है वो स्टैटिस्टिक्स अबाउट द पेटेंट्स किस तरीके से होल्ड करवाए. ठीक है. So basically there's a traditional way that somehow I'm going to scroll through the slides, or just जो slides पे लिखा है उसको हम follow up करते जाएं. And the other way is, let's introduce with the terms first. Okay, so ultimately when we are aware of the terms that are going to be used, or that are going to be frequently used in these slides, or in this topic, so we could be अवेयर कि भी हम ये वर्ड्स क्या हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, और जब whenever इसका नाम आया है तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. ठीक है. सो आई थिंक वी शुड गो फॉर द सेकंड स्ट्रैटेजी. So the basic topic that we are going to use is the intellectual property rights. ठीक है, the one I have written here. So before diving in this broader term, let us see what is property actually. So if I will ask you guys what is the property, or just think about कि आपके जहन में property क्या आती है, तो student will just say okay, maybe ज़मीन, maybe जायदाद, maybe some kind of, okay, yeah, it's a property as well, but it's not just our property. Okay, so let's suppose कि okay, these things are the tangible ones. Okay, वे आपकी ज़मीन हो गई, आपका आपकी आपकी जायदाद होगी, आपकी आपकी tangible properties हैं. ठीक है, खाली tangible property is खाली tangible things ही आपकी properties नहीं होती. There are some intangible, for example the goodwill of you. ठीक है, for some other person, ये भी आपकी property में आ जाता है. ठीक है, that is not tangible, that is something inside your mind. सही. So ये क्या intangible thing है. So intangible is property is just not about that tangible thing. It's also somehow we are talking about the intangible things as well. So okay, ultimately intangible things ही जो हैं वो tangible की शक्ल लेती है. ठीक है. So ultimately whenever you are going to listen the word property, don't just say okay zameen, it's a property, okay jaydad, it's a property. No, whenever you're going to take this property name, the one you are going to say, always remember this term. Okay, it's a bundle of the rights. So if I'm going to ask you what is the property of someone else, is going to ask you what is the property, so it's about the bundle of the rights. Okay, it's not just about एक right, दो right, three rights. Anything, any bundle of the rights जो कि उस particular perspective में fall हो सकते हैं, वो हम उसको property जो है वो consider करेंगे. ठीक है. So let's suppose if I'm going to say कि there is a person A, और person A का जो है वो एक घर है. ठीक है, what is this? Of course it's a property. Okay, so यहाँ पे उसके पास क्या हम यही कहेंगे कि okay, this is the house, A house, और ये उसको own करता है तो ये उसकी property है. इस प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए, इस प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से उसके पास जो जो राइट्स इसके अंदर आएंगे, जो जो काम वो इसके अंदर विदाउट समवंस परमिशन कर सकता है, वो तमाम को हम कलेक्टिवली कह रहे हैं बंडल ऑफ राइट्स, और वो तमाम बंडल ऑफ राइट्स जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक घर में वो कोई रेनोवेशन करवा सकता है, अपने घर में वो कोई वो रेंट पे दे सकता है, अपने घर में कोई पोर्शन वो रेंट पे दे सकता है, अपने घर को गिरवी रखवा सकता है, लोन ले सकता है फॉर इट, एंड अपने घर में
किसी एक पोर्शन में कोई ना कोई काम करवा सकता है, कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, मेरा मैं अपने घर को आग लगा सकता है, ठीक है। सो नो वन इज गोइंग टू आस्क कि भाई क्या कर रहे हो तुम इस घर के साथ, वाई, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। सो ये जो टर्म्स मैंने अभी बोले कि इस घर के पर्सपेक्टिव में रहते हुए भी वो जो जो काम कर सकता है, देयर आर ऑल द बंडल ऑफ द राइट्स जो उसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। So ultimately, okay, so ultimately, let's suppose if I say कि same a person has some shares in a company called X Limited. We don't know any company, ठीक है, but let's say a company is called the X Limited. So we're going to say कि इस company के अंदर इस particular a person ने कुछ shares डाले हैं. So अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या, ये पूरी कंपनी उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? नो, ठीक है। इस शेयर्स के पर्सपेक्टिव में रहते हुए उसके जो भी बंडल ऑफ राइट्स बनते हैं वो तमाम उसकी प्रॉपर्टी में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। कोई कोई जर्नल मीटिंग इनिशिएट होती है, उसके अंदर उसका शामिल होना, उसको मैसेजेस पहुंचना, उसकी ईमेल्स उसको पहुंचना, कुछ नोटिस पहुंचना, उसको उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर रहते हुए उसके डिविडेंड्स पहुंचना, जर्नल मीटिंग के लंच पार्टीज वगैरह, ये सब चीज़ों में उसका ऐड होना, ये तमाम उसके राइट्स में आता है। एंड दिस ऑल इन्वॉल्व इन द प्रॉपर्टी. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू वर्ड say a word property, it doesn't mean just a single zameen or just a single जायदाद, it's a bundle of whole rights जो कि उस particular term के अंदर involve होते हैं, ठीक है। So definitely, let's raise this first. So definitely, if I'm going to say okay ठीक है, we are well aware of the word property. So ultimately, if anyone would say what is a property, I'm going to say that it's a bundle of rights, not just a single thing, ठीक है, it's a whole bundle of rights. So if I'm going to say what is the intellectual property, which is also called the IP, ठीक है, IP stands for the intellectual property. तो for this हमें जो है वो सबसे पहले आई, इस आई का मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो देयर मस्ट बी डेफिनेशन जो आप लोगों ने याद रखनी है. मतलब इफ आई एम गोइंग टू से कि एनी पर्सन इफ इट गोइंग टू like okay, share could be a share, but the property, let's say, which is the creation of human intellect. Okay, I'm intentionally using this word intellect, okay. And what's the intellect mean? It could be your brain, it could be your brain, or it could be your mind as well, okay. Okay, so let's suppose whenever you are going to use this word intellectual property, so what you are going to say that's intellectual property is basically a property which is the creation of the human intellect. Okay, so intellect का meaning क्या होता है? दिमाग वाला, ठीक है. So intellectual property क्या होगी कि ऐसी चीज जो आपके दिमाग में ने बनाई है, आपके ब्रेन ने बनाई है. So human is going to be the creator of that particular intellect. क्यों? क्योंकि human के brain ने और mind ने उस particular चीज को बनाया है, ठीक है. So anything that is created by the human mind or particular human, उसके हम कहते हैं ना वो बड़ा intellectual person है, बड़ी intellectual बातें करते हैं, हम कहते हैं दिमाग वाली बातें करते हैं, ठीक है ना. So anything that is the creation of the human mind will ultimately become the property of that person. Okay, so if my mind is going to devise any idea, okay, so how I create that idea? So definitely it's the creation of my mind. So ultimately it's my intellectual property. Okay, so how I'm going to claim that property? So okay, so for that particular thing, I have to introduce some kind of rights, ठीक है. It's my right, I produce this, ठीक है. So intellectual property, broadly speaking, there are multiple types of properties that come under this IPR version, but broadly speaking, we're going to talk about three mainly things. Number one is the copyright. Oops. Okay, number one is the copyright, and the other thing is going to be the patent, and the third will be the trademark. Okay, so इस इन तीन में रहते हुए जो है वो हम बात करेंगे. Okay, let's clear all the drawings. Okay, so let's talk. So ultimately we are now aware of what is IP, and IP के बारे में जब भी आएगा, it's a property which is the creation of the human intellect, human brain or the mind. Okay, so a property which is a creation of the human mind. Broadly speaking, we're going to talk about the three different kinds of the IP. Number one is the copyright, number two is the patent, and the number three would be the trademark. Okay, so ultimately
Okay, Janab. So the different kinds of the IP I was talking about, the number one, as I already told you guys, that the number one would be the copyright. Okay, so let's write here. Copyrights would be the first one. Then we will talk about the patents, and the third we will talk about the trademark. Okay. So ultimately, if you have any idea about the copyright, so what would be the first thing that will come into your mind? So always remember कि कॉपीराइट हमेशा उन कामों में मिलता है आपको जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है. सो क्रिएटिविटी किस, फॉर एग्जांपल अगर आप एनीथिंग एनीथिंग जिसमें किसी ह्यूमन की क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? कॉपीराइट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल मूवी मेकिंग, ठीक है. वेरी आप लोगों की टाइप की एग्जांपल मिल रही है आपको, ठीक है ना. मूवी मेकिंग हो गई, सॉन्ग्स की कंपोजिशन होगी, ये वाली जितनी भी एंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये आपकी यहाँ पे जितने भी काम आ रहे हैं, इन सब के पास क्या होते हैं? इन सब के पास कॉपीराइट्स होते हैं. वाई? क्योंकि देखो ना, हर ये सारे काम जो है वो उनकी कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, ठीक है, जिसको वो इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है. सो उन तमाम कामों में जो कि ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो रही है, उन तमाम चीज़ों पे आपको कॉपीराइट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल इफ एक कोई डायरेक्टर है, वो मूवी मेक कर रहा है, तो उसमें उसका कॉपीराइट होता है, या आपने लाइन सुनी होगी, ठीक है ना. मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी चीज जो हर एक की बस की बात ना हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल बुक राइटिंग इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस. हर कोई जो है वो बुक नहीं लिख सकता, तो बुक राइटिंग पे या बुक ऑथर्स को हमेशा क्या मिलते हैं? कॉपीराइट्स मिलते हैं, ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल इफ अगर मैं बुक राइटिंग की एग्जांपल को एग्जैजरेट करूं, तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग देखे होंगे जिन्हें किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होती है, लेकिन हर कोई उसके ऊपर किताब नहीं लिख सकता, ठीक है ना. तो आपने मे बी सुना हो अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोड्यूस की थी. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आई एम नॉट आस्किंग कि वर्ड क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन अल्टीमेटली हर किसी ने एक फॉर्मूला जरूर सुना होगा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है. अब ये क्या है? ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस तरीके से ये वर्ल्ड बनी, ये अर्थ किस तरीके से वजूद में आई, ये तमाम चीज़ें, ये यहाँ पर आपकी, ये आज भी इसको हम रिलेट करते हैं, थ्योरी रिलेटिविटी से रिलेट करते हैं, पढ़ाया जाती है इन थ्योरीज को, ठीक है. सो अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये चीज़ जो प्रोड्यूस, इस पर उसको कॉपीराइट शायद मिले, ठीक है. मे बी फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जब ये फार्मूला जो है ये वजूद में आया, एक्चुअल वजूद में आया, तो ये उसी टाइम उसको पता लगा था. नो, ठीक है. वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. मतलब जब ये चीज उसने दुनिया के सामने लेकर आया था कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी कोई चीज होती है, वो इससे 10 साल पहले ही जानता था कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कुछ होता है, ठीक है ना. 7 8 10 साल पहले, ठीक है. बट अब किसी ने पूछा कि आपको अगर इससे 10 साल पहले ही पता था, तो आप उस टाइम क्यों नहीं दुनिया के सामने लेकर आए? तो ही सेड कि अगर मैं उस टाइम दुनिया के सामने ले आता तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे तो पता था ये होता है, लेकिन मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं दुनिया को एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है. सो उस पर्टिकुलर चीज को जानने के बावजूद उसने उसके ऊपर 10 साल 7 8 साल लगाए कि भाई उसको ऊपर वो एक पूरी किताब लिख सकता, ताकि वो दुनिया को प्रूव कर सके कि हाँ जी भी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है. सो इसकी बड़ी एक फेमस कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, इफ यू नो समथिंग but if you're not able to explain that particular thing to someone, okay, then it means you know nothing. सही. तो अगर आपको कुछ पता है लेकिन आप उसको दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आपको वो चीज़ नहीं पता. मतलब कोई मूवी शूवी देखते हो आप लोग, ठीक है ना, उसको आप दूसरे फ्रेंड को बड़े A to Z जो है ना, उसको विद ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सप्लेन करके बैठ जाते हो, ठीक है. इट मीन्स कि यू नो एक्चुअल थिंग. पर अगर मैं यही कहूँ यार पेटेंट और ये जाकर ना आगे पढ़ा देना, तो आप कहोगे अच्छा यार ये होता है, आगे तो खुद ही पढ़ ले, ठीक है ना. तो इट मीन्स कि यू कांट एक्सप्लेन समथिंग टू समवन अनटिल अनलेस आपको खुद ही उन चीज़ों का पूरा आइडिया ना हो, ठीक है. सो बुक राइटिंग इज नॉट एवरीवन्स गेम, ठीक है. हर कोई बुक नहीं लिख सकता. एक चीज़ का नॉलेज होना और उसका इतना डेप्थ नॉलेज होना कि आप वो एक बुक की शक्ल में सबको निकाल सको, तो ये हर एक की बस की बात नहीं है. सो द ऑथर्स, जो लोग इस बुक को लिखते हैं, ठीक है, उनको हम क्या देते हैं? कॉपीराइट्स देते हैं, ताकि कोई और जो है वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है. सो अल्टीमेटली
फॉर एग्जाम्पल अब यही घर वाली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, आप सबको मैं कहूँ कि यार एक घर बनाओ, तो हर कोई अपने अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को यूज करते हुए कोई ना कोई एक पिक्चर बनाएगा, वो उसकी क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, तो वो उसका कॉपीराइट होगा। सही हो गया। तो आपके पास जितनी चीजें आती हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्टिंग की फील्ड आ जाती है, लिटरेचर की फील्ड आ जाती है, आपकी एंटरटेनमेंट की फील्ड आ जाती है, मूवी मेकिंग की फील्ड आ जाती है, इस तरह की तमाम चीजें ये क्या नीड क्या मांगती हैं, क्रिएटिविटी मांगती हैं, कोई आम बंदा इनको जो है वो आके प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, उन तमाम चीज़ों पे आपको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। तो समहाउ आपको आइडिया हो गया होगा कि ओके ठीक है, कॉपीराइट इज समथिंग लाइक दिस। सही। सो लेट्स इस पे आते हैं दोबारा, लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट द पेटेंट। सही। पेटेंट क्या है? पेटेंट आपको उन तमाम चीज़ों पे मिलता है जिसके अंदर कोई न्यू इन्वेंशन होती है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आपने नाम सुना होगा किन चीज़ों का, आपने नाम सुना होगा एक डिस्कवरी, ठीक है, और दूसरा नाम आपने सुना होगा इन्वेंशन का, ठीक है। डिस्कवरी क्या होता है? डिस्कवरी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप कहोगे? कोई डिस्कवरी उस चीज को कहते हैं जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में थी, आपने नहीं उसको बनाया, तो वो पहले से वजूद रखती थी अपना, वो पहले से एग्जिस्टेंस थी, लेकिन आपने उसको इन्वेंट नहीं किया। मैं एक लाइन ऐसे यूज कर रही हूँ जो कि जिसमें आपको डिफरेंस क्रिएट हो। पहले से वो वजूद रखती थी, आपने क्या किया, यू जस्ट बॉट अप द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, आप उस चीज को जो है वो दुनिया की नॉलेज में ले आए कि यार ये भी एक चीज होती है, ठीक है, ये चीज भी पाई जाती है, ठीक है। न्यू न्यू प्लेसेस वो ऑलरेडी दुनिया में है, आपने नहीं उनको बनाया, ठीक है, आप जस्ट उसको जो है वो डिस्कवर किया, आपने उसको दुनिया के सामने लेकर आया कि अच्छा ये भी एक चीज है, ठीक है। तो डिस्कवरी इसको कहते हैं। डिस्कवरी पे पेटेंट्स नहीं मिलते हैं। एक ऐसी चीज बनाना, ठीक है, जो पहले से उस अपना वजूद ना रखती हो और वो आपने इन्वेंट की हो, आपने पहली पहली दफा लेकर आए हुए हो दुनिया के सामने, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये काम करती हैं, ये किस पे काम करती हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती हैं, ठीक है। ये इतने इतने टाइम तक रिसर्च करती रहती हैं और उसके बाद वो कोई मेडिसिन डेवलप कर रही होती है। सही। सो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से लें कि उसने एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट की है, ठीक है, मतलब फॉर एक डिजीज है, कोई भी आप डिजीज दिमाग में लें, और वो डिजीज जो है वो नॉन क्योरेबल है, यानी कि उसका अभी तक क्योर प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई नहीं जानता कि उसका इलाज क्या है। तो वो एक ऐसी मेडिसिन प्रोड्यूस कर लेते हैं जो उस पर्टिकुलर जो है आपकी बीमारी है उसका इलाज, उसका क्योर देती है, ठीक है। सो क्या क्या किया उसने क्या किया उस कंपनी ने, टू क्योर एनी नॉन क्योरेबल डिजीज, उसको उसने किसके साथ क्योर किया? विद जस्ट इन्वेंटेड मेडिसिन, जो उसने अभी अभी उसको इन्वेंट किया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में हम क्या कहते हैं, पेटेंट मिलता है ऐसी चीज़ों में जो कि आप खुद इन्वेंट करते हो। सही। सो अब देखा जाए तो अच्छा, ट्रेडमार्क क्या है? जस्ट 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 फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस, ट्रेडमार्क आपका कोई भी लोगो हो जाता है, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन हो जाता है, कोई भी कलर हो जाता है, कोई भी सिंबल हो जाता है, जो आप अपने आप की आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो आपको दूसरों से सेपरेट रखती है, ठीक है। इट कुड बी एनी लाइन, इट कुड बी एनी सिंबल, इट कुड बी एनी नेम, इट कुड बी एनी कलर, इट कुड बी एनी म्यूजिक, ठीक है ना, जो आपको दूसरों से, दूसरी कंपनी से अलग बनाती है, वो आपके खुद की पहचान होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, मैं एक स्टाइलिश करके ऐसे लिख दूँ, ये मेरा ट्रेडमार्क बन जाएगा, ठीक है। सो these all things would be the trademark, comes into the trademark thing. So कहने को तो all these things involve the creativity. For example तीनों चीजें, अब हमने कहा कि हमने तो सिर्फ कॉपीराइट्स पे कहा क्रिएटिविटी, आप कहेंगे नहीं भी हम तो सारी चीजों पे ही दिमाग लग रहा है मेरा, तो ठीक है, सारी चीजों में क्रिएटिविटी मिलती है। हाँ, सारी चीजों पे ही क्रिएटिविटी लग रही है, सारी चीजें ही जो है वो उस पर दिमाग लग रहा है, तमाम चीजें इंटेलेक्चुअल हैं। दैट्स व्हाई these all come to the a single word, that is intellectual property, ठीक है। सो ये तमाम चीजें एक टाइप्स हैं, बस इसके अंदर कौन सी डिफरेंट चीज किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर फॉल होती है, इस तरीके से डिफर कर जाती है, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन ब्रेन की क्या है, ह्यूमन इंटेलेक्ट की क्रिएशन है, ठीक है। और तमाम उसकी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको कोई और ना चुरा सके, उसके लिए हम कुछ राइट्स में उसको डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज कॉल्ड आईपीआर, ठीक है, कॉल्ड आईपीआर। सही। उसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप, जो कि तीन मेन कैटेगरीज हैं, वो आपकी कॉपीराइट्स आता है, पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क आता है। कॉपीराइट्स मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजें जिसके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाए, जैसे मूवी मेकिंग, एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड क्राफ्टिंग, लिटरेचर, बुक राइटिंग, ये तमाम चीजें इसके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है।
ये तमाम चीज़ें किसके अंदर फॉल करेंगी, कॉपीराइट्स के अंदर फॉल करेंगी, ठीक है ना। और ऐसी तमाम चीज़ें जो पहले से ना पाई जाते हो, ऐसी इन्वेंशन, कोई न्यू इन्वेंशन हो जो यूनिक हो, जो यूजफुल हो, ठीक है ना, वो तमाम चीज़ें किसके अंदर फॉल कर जाती हैं, पेटेंट्स के अंदर। और एनी सिंबल, नेम, म्यूजिक, लोगो, कोई लाइन, ये तमाम चीज़ें आपकी किसके अंदर फॉल कर जाती हैं, ट्रेडमार्क के अंदर फॉल कर जाती है, ठीक है ना। सो अभी अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, चलें फॉर एग्जांपल अभी इसी के अंदर रहते हुए ले लेते हैं कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी पर्सन ए की, ठीक है ना। पर्सन ए की एग्जांपल दी हमने हाउस की। पर्सन ए जो है उसके शेयर्स थे कंपनी में। एक तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि पर्सन ए जो है उसने क्या किया, एक बुक लिखी है, ठीक है। तो पर्सन ए इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, सही। सो पर्सन ए हैज अ बुक, तो इसके ऊपर कौन सी इन तीन कैटेगरीज में कौन सी चीज फॉल करेगी, उसके कॉपीराइट होंगे, बुक के, पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा। What could be the answer? What could be the answer? Yeah, of course, if you are saying copyright then you are right. Okay, so person A जो है वो बुक ऑन करता है, इस बुक के पर्सपेक्टिव में रहते हुए इस पर्सन ए के एक बेतहाशा बंडल ऑफ राइट्स आते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो उसकी बुक है, ठीक है। सो वी कैन से कि पर्सन ए इज हैविंग द बंडल ऑफ राइट्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट प्रॉपर्टी, व्हिच प्रॉपर्टी, द बुक, ठीक है, जिसका उसने अभी अभी कॉपीराइट्स निकलवाए, सही। अब बंडल ऑफ, मैं बार बार बोल रही हूँ बंडल ऑफ राइट्स, ये बंडल ऑफ राइट्स क्या है, ये बंडल ऑफ राइट्स ही बेसिकली उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएंगी। अब वो किस तरह के राइट्स आ रहे हैं, उसे एक बुक के होते हुए आप सोचिए किस किस तरह के राइट्स मिल सकते हैं। इस पर्सन ए को राइट है कि वो अपनी इस बुक को, जो कि उसके दिमाग में था, एक आइडिया, इंटेलेक्ट था, उसको वो एक किताब की फॉर्म में लेकर आया, उस पर उसको बंडल ऑफ राइट्स है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसके अंदर कौन कौन से राइट्स उसके आ सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकता है, वो उस बुक को पब्लिश करवा सकता है, वो उस बुक को मार्केट के अंदर सेल करवा सकता है, वो उस बुक को डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस करवा सकता है, वो उस बुक का एक न्यू एडिशन लेकर आ सकता है, वो उस बुक के ऊपर कोई ना कोई मूवी क्रिएट कर सकता है। यू नो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ राइट्स। इसके अलावा भी बेतहाशा राइट्स हैं, लेकिन ये तमाम राइट्स जो हैं वो अंडर दिस वन कैटेगरी फॉल हो रहे हैं, जो कि हमने कहा है कि बुक जो है वो प्रॉपर्टी है इस पर्सन ए की। इस पर्सन ए की प्रॉपर्टी, मैंने अभी आपको कहा, whenever you are going to use the word property, don't just ज़मीन, just जायदाद, just these kind of things, it's actually a bundle of rights. So एक intellectual property, like इस पर्सन ए की intellectual property ये बुक है, तो इसकी intellectual property में कौन से bundle of rights इसके आ जाएंगे, publishing, printing, edition, blah blah blah, these all things, ठीक है। So I hope कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम, ठीक है, उससे हमारे पास मजीद चीजें हैं, लाइक आई एम गोइंग टू यूज दिस टेक्स्ट लाइन, ओके। सो अल्टीमेटली लेट्स सपोज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। सो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेम पर्सन है, पर्सन ए को हम मजीद अमीर बना देते हैं, ठीक है। लेट्स राइट अ लाइन, लेट्स सपोज कि मैं ये लाइन लिख रही हूँ कि ही like he has got the exclusive, this word is important, exclusive right to, now this word is again important, commercially exploit that property। ये मैंने बड़ी एक बेहतरीन लाइन लिखी है, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन में आप अगर देखें तो आपको तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको दिख रहा है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूसिव मीन्स कि इफ आई एम गोइंग टू कि ये मेरा एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब ये सिर्फ मेरा है, ठीक है ना। तो इफ आई आर गोइंग टू टेक आवर प्रीवियस एग्जांपल दैट इज पर्सन ए, तो पर्सन ए जो है अगर वो कोई चीज ओन कर रहा है, जैसे हमने बुक की एग्जांपल की दी, तो वो उसका वो बुक जो है वो उसका एक्सक्लूसिव राइट है, ये सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर दूसरा वर्ड इसके अंदर हमने बोला है कमर्शियली एक्सप्लॉइट। इसका क्या मतलब है, कमर्शियली एक्सप्लॉइट का मतलब होता है यूज करना किसी चीज को, ठीक है ना, किसी चीज को यूज करना। अच्छा, कमर्शियली एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसको है, उसकी है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितने भी राइट्स आ जाएंगे वो भी एक्सक्लूसिवली उसी के राइट्स होंगे, ठीक है। उस किसी ऐसे राइट को इस तरीके से यूज करे जो उसको कमर्शियली बेनिफिट पहुंचा रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर लिया, ठीक है ना। सो ये वी कैन से कि इफ पर्सन ए इज गोइंग टू ओन समथिंग, और वो उसको इस तरीके से कमर्शियली यूज कर रहा है कि उसको पैसा मिल रहा है उस पर, वो उसको ओन कर रहा है, उसको चीज उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो वी कैन से कि ओके पर्सन ए गॉट द एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल
आप अगर देखो तो आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, वही पुरानी एग्जांपल। पर्सन ए है, उसकी उसने एक बुक लिखी है। आपको ना इस बुक के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक तो ऑथर मिलेगा और एक पब्लिशर मिलेगा, ठीक है। मैं बड़ी बेसिक से एग्जांपल दे रही हूँ, शायद आप लोगों को उन्हें कभी नोट किया हो या शायद कभी नोट ना किया हो, ठीक है। आज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। आपको उस एक बुक का जो है ना वो एक ऑथर दिखेगा और एक आपको उसका पब्लिशर दिखेगा। अब हमने कहा कि इस ए के पास जो है वो प्रॉपर राइट्स हैं, कि इसी के ए के पास क्या है, बुक है। ए जो हुआ वो इस बुक का क्या हो गया, इस बुक का ऑथर हो गया। क्यों ऑथर हुआ, क्योंकि ये इसने लिखा है। तो ये बुक जो है भी उसका एक्सक्लूसिव राइट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो उसके माइंड का कोई आइडिया था जो उसने उस बुक में जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इस बुक के अगेंस्ट उसके पास मल्टीपल राइट्स आते हैं। वो कौन से राइट्स आ सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। वो उसको पब्लिश कर सकता है, वो उसको प्रिंट करवा सकता है, वो उसको मार्केट में सेल कर सकता है, वो आगे मल्टीपल काम कर सकता है। सो अगर हम सिर्फ इस पे रहें कि पब्लिश, प्रिंट एंड सेलिंग पे, ठीक है। तो अगर एक ऑथर जो है वो जरूरी नहीं है कि अगर लिखने में अच्छा है तो उसके पास ये भी स्किल हो कि वो किस तरीके से उसकी पब्लिशिंग करवाए, वो किस तरीके से जाकर प्रिंटिंग करवाए, वो मार्केट में उसको कैसे सेल करवाए, ठीक है ना। मे बी इट वुड बी अ गुड ऑथर, बट इट वुड नॉट बी अ good in maybe it would not be good in the publishing schemes, ठीक है। सो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर ऑथर होता है वो अपने इस पर्टिकुलर राइट को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये वाला राइट, कौन सा राइट, कि भाई मेरी ये बुक है, आई एम द ऑथर, बट इसका जो ये राइट है कि पब्लिशिंग और प्रिंटिंग एंड सेलिंग, वो आगे किसी ऐसे बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर सेल कर देता, नॉट सेल, जस्ट यूज के उसको ट्रांसफर कर देता है, या ट्रांसफर इज द गुड वर्ड। वो ये पर्टिकुलर राइट जो है वो किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर देता है जो इस काम का माहिर है, लेट्स से पब्लिशर, ठीक है ना। बदले में ये क्या लेता है, बदले में ये पब्लिशर जो है वो इस पर्टिकुलर ऑथर को रॉयल्टी देता है, ठीक है। ये वर्ड आपने याद रखना है, सही। सो बदले में ये क्या करेगा, ये उसको रॉयल्टी देगा। सो नॉर्मली होता ही ऐसे है, ठीक है। ऑथर ने इस पर्टिकुलर काम का राइट किसको दे दिया, पब्लिशर को दे दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया और बदले में उसको रॉयल्टी दे दिया। अब रॉयल्टी उसके लिए क्या बनेगी, ये उसके लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। ऑथर को क्या चाहिए, उसने एक बुक लिखी है और वो अपना काम जो है वो एक ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर देता है जो इस पर्टिकुलर काम का माहिर है, ठीक है। तो अब ये पब्लिशर क्या करेगा, इस बुक को जो है वो पब्लिश करेगा, इस बुक को मार्केट में जाके सेल करेगा, जितनी मर्जी कॉपीज इसकी सेल करवा सकता है, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेडिशन साइन हो जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, बदले में उसको रॉयल्टी प्रोवाइड कर देता है, मुंह मांगी, ठीक है। जितना ऑथर जो है वो डिमांड करता है वो उतना उसको पैसा मिल जाता है। तो उसके लिए अब ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, ये एक ही दफा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि ऑथर इसको किस तरीके से लेता है। तो इट विल बी दी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब आपकी टाइप की जो है वो ले लेते हैं, आप मूवीज देखते हो, ठीक है, आप तो बिल्कुल कंज्यूमर लेवल के हो, बट एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यही ऑथर जो है उसने एक ऐसा बेहतरीन नॉवल लिखा और उसने उसको पब्लिश भी करवा दिया, बैठे बैठे उसने कहा कि ओके ठीक है। एक फिल्म मेकर था, ठीक है, जिसका काम, फॉर एग्जांपल ऑथर का काम जो है वो बुक लिखना है। हर ऑथर जो है वो अपनी किताब को फिल्म की सूरत में नहीं प्रोड्यूस कर सकता। फिल्म मेकिंग इटसेल्फ एक क्रिएटिविटी है, ठीक है ना, वो हर एक को नहीं आती है। सेम एज जो एक फिल्म मेकर है वो एक अच्छी कहानी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो एक कहानी, एक मौजूद कहानी को किसी लाइव चीज में जरूर लेकर आ सकता है, ठीक है। बट ये सेम एज एक ऑथर जो है वो अपनी कहानी का फिल्म नहीं बना सकता, क्योंकि फिल्म इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, उसके अंदर जान डालना है, ठीक है, करेक्टर्स बिल्ड करना है, देयर आर डिफरेंट पर्टिकुलर थिंग। सो यही ऑथर जो है वो क्या कर देता है, वो ट्रांसफर कर दे, या ये फिल्म मेकर जो है वो इस ऑथर को रियलिटी देकर उसकी क्या कर ले, उसका लाइसेंस ले ले, कॉपीराइट्स ले ले कि भाई ये इस पर्टिकुलर कॉपी बुक के कॉपीराइट्स जो हैं वो इस तरीके से मेरे पास ट्रांसफर हो गए कि आई कैन मेक अ फिल्म ऑफ इट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि इस थ्रेड को छोड़ दें, लेट्स से फिल्म मेकर है, उसने क्या बना दी, एक फिल्म प्रोड्यूस करवा दी, ठीक है ना। अब अगर उसने एक फिल्म प्रोड्यूस करवा दी है तो आप देखो, नॉवल लिखने वाला कोई और था, फिल्म बनाने वाला कोई और था, सिनेमा में ले जाने वाला कोई और होगा, ठीक है। और उसके बाद बल्कि आप ये कहो कि उस सिनेमा तक ले जाने वाला कोई और होगा, उस सिनेमा के अंदर फिल्म प्ले करने वाला कोई और होगा और उसको देखने वाला कोई और होगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का डब्बा पकड़ के जो है वो खा रहे होते हैं, ठीक है। सो समहाउ के जो फिल्म मेकर है वो क्या करता है, वो अपनी फिल्म के राइट्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है ना। वो अपने राइट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी
जो है वो किसी पर्टिकुलर सिनेमा हॉल्स को, जो आप देखो कोई एक फिल्म एक जगह तो नहीं लगती, डिफरेंट सिनेमा हॉल्स में लगती है, डिफरेंट स्टेडियम्स में, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे लगती है, ठीक है। सो सिनेमा हॉल्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नाउ इट विल बिकम ऑन सिनेमास के भाई वो इसको कौन कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में लगाते हैं, और उसमें से कितना पैसा जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो somehow हर बंदा जो है वो पीछे से एक चीज लेता है, उसके पर्टिकुलर कॉपीराइट जिसके होते हैं, और उस बदले में उसको क्या प्रोवाइड कर देता है, रॉयल्टी प्रोवाइड कर देता है। तो आई होप सो ये तमाम को करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको सिर्फ आइडिया हो सके कि ओके ठीक है, दीज आर द प्रोसेसेस, और ये जो टर्म्स हैं ये कैसे यूज होती हैं। सो आई होप सो अब आपको जो है वो इसका बड़ा आइडिया हो गया होगा, तो ओके ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। क्यों, मतलब हम क्यों कहते हैं कि भाई उसे पर्सन ए के पास जो है वो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी जो चीज है वो आपको इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जब भी एक आईपी प्रोड्यूस होता है, आईपी प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है, एक ह्यूमन था, उसके माइंड ने कोई आइडिया सोचा, ठीक है, जिसको वो उसने टैंजिबल बनाया, और उसकी जाहिर सी बात है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या बन जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो जब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओरिजिन होता है, वो बनती है, तो क्या उससे जनरल पब्लिक को भी फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। मतलब ये दो क्वेश्चंस हैं कि क्यों बनाई है, क्यों ये पर्सन ए जो है अ, उसको हम एक्सक्लूसिव राइट क्यों देते हैं, वो क्यों एक्सक्लूसिव राइट। डेफिनेटली भाई अगर उसने हार्डवर्क किया, उसकी कोई क्रिएटिविटी है, उसकी कोई इन्वेंशन है, उसने कोई अपना सिंबल क्रिएट किया है जो उसको आइडेंटिटी बना रहा है, उसने एक हार्डवर्क किया है, ठीक है, उसके दिमाग उसका यूज हुआ है, तो डेफिनेटली उसका उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। दैट्स इजी वाई 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 हम उसको एक्सक्लूसिव राइट देते हैं, और डेफिनेटली उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। क्या उसने जो पर्टिकुलर चीज बनाई है उसकी वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो क्या उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सोसाइटी को भी कोई फायदा होता है। यस होगा। अगर मैं आपको वापस उसकी जो है एग्जांपल पे लेकर जाऊं, जो आपकी फार्मास्यूटिकल एग्जांपल है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल ने क्या किया था, उसने एक ऐसी मेडिसिन प्रोड्यूस की थी, जो मेडिसिन ने क्या करती थी, फॉर एग्जांपल वो मेडिसिन जो है वो एक ऐसी डिजीज का क्योर करती थी जो कि अभी तक इलाज थी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली सोसाइटी जो है वो हेल्प लेती है। कोई बुक ऑथर जो है वो बुक लिखता है, तो उसकी एक गुड थॉट, गुड टॉपिक, एजुकेशनल टॉपिक जो है वो सोसाइटी के सामने आता है, उसको पढ़ती है, उसको अवेयरनेस आती है, ठीक है, तो ये फायदा होता है, सही। बहरहाल अब इससे दोनों को फायदा होता है, सोसाइटी को भी फायदा होता है, और जो बना रहा होता है उसको डबल फायदा होता है। एक तो उसको उसके लिए उसको जो है वो एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है, और उस पे जो है जब वो उसको आगे से मजीद सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं इन 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 रिटर्न ऑफ सम रॉयल्टीज, तो उसके लिए वो क्या बन जाती है, सोर्स ऑफ इनकम या जरिया बन जाती हैं जो उसको बेनिफिट दे रहे होते हैं, ठीक है। सो द स्टोरी इज जस्ट सो सिंपल। अगर मैं सब सारी चीजों को एक जगह लेकर आऊँ, तो स्टोरी जो है वो इट्स वेरी सिंपल, कि जो भी आइडिया आपके माइंड में आया है, वो आइडिया किसी के और भी माइंड में आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपके माइंड में ही सिर्फ आया है, बट अभी तक उस आइडिया के राइट्स आपको नहीं मिले। तो जैसे ही आपके माइंड में कोई आइडिया आता है और आपको लगता है कि वो एक बड़ा एक इंटेलेक्चुअल आइडिया है, तो आइडिया उसका माना जाएगा जो उसको पहले रजिस्टर करवा लेता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इसका आइडिया, उसका आइडिया सबके माइंड में आता है, एक जैसा आइडिया भी बहुत सारे लोगों के माइंड में आ जाता है, लेकिन जो उसको पहले रजिस्टर करवा लेता है वो आइडिया उसी का ही माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो आइडिया रजिस्टर करवाने का प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को भी हम क्या कह देते हैं, पेटेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक इन्वेंटर है, उसके माइंड में कोई आइडिया आया है, वो उस राइट की क्या करता है, वो उसको रजिस्टर करवाता है, उसको मोनोपोली मिल जाती है उसकी, ठीक है ना। तो अब उसके ऊपर उस आइडिया को, उस इन्वेंशन को, उसकी जो इन्वेंशन जो अभी अभी उसने जो इन्वेंट की है एक चीज, ठीक है, वो जहां जहां लगती है, उसे जहां जहां से लोग यूज करते हैं, जहां जहां से उसको अर्निंग होती है, वो तमाम पैसा जो है वो उसकी जेब तक आने का काम कौन करता है, ये पेटेंट की जिम्मेदारी होती है। कौन देता है ये पेटेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पेटेंट, ठीक है। और हर एक ये जितनी तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, कॉपीराइट्स आ गई, ठीक है, आपका पेटेंट आ गया, और आपका ट्रेडमार्क आ गया, तीनों चीजें, इसका इसका एक अपना एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम तक तो ये वैलिड होता है, और उसके बाद जो है वो उसको सेल भी किया जा सकता है, कोई और उसको बना भी सकता है, और उसका लाइसेंस भी प्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है ना। और WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये पेटेंट की टाइम फिक्सिंग होती है। और नॉर्मली जो तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, कॉपीराइट की, पेटेंट की और ट्रेडमार्क की, इसका अपना पेटेंट का जो है ना वो 20 साल का जो है वो ज्यादा टाइम होता है, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेते हैं।
20 साल जो है वो इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स टाइम 20 साल तक जो है ना वो रहता है, ठीक है। और उसके दौरान जो है वो दूसरों को वो लाइसेंस भी अपना ले सकता है, वो रॉयल्टीज भी ले सकता है, डिफरेंट टाइम स्लॉट जिसके ऊपर वो होता है। अच्छा, अब पेटेंट की भी आगे 3 तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। पेटेंट भी आगे से 3 तरह की टाइप से डिवाइड होता है। एक सबसे पहले को हम कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट, ठीक है। जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं डिजाइन पेटेंट, ठीक है। जो तीसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं प्लांट पेटेंट, पीपी, ठीक है। जो आपके यूटिलिटी पेटेंट्स है ना, ये जो आपकी जितनी भी मशीन्स हो जाती हैं, रॉ आपका रॉ रॉ माल जो ऐसा खाम माल हो जाता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट कोई कंपोजिशन आप कर रहे होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, कोई मेडिसिन आ जाती है, इन तमाम चीजों पे जो है ना वो आपको पेटेंट प्रोवाइड होता है। डिजाइन की फॉर्म में भी जो है वो आपके पेटेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। किसी कोई पर्टिकुलर चार्ट आ गया आपका, कोई डिफरेंट डिजाइन आ गए, ठीक है, कोई मोटिव्स आ गए, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपकी डिजाइनिंग के ऊपर इनकी पेटेंट लग रही होती हैं। मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो हाइब्रिड करके कोई डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस करना, ऐसी कोई न्यू टाइप प्रोड्यूस करना जो अब तक पाई ना जाते हो, आपने दो चीज़ों का कंबाइन करके एक न्यू टाइप प्रोड्यूस की हो, ये सारी भी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्लांट पेटेंट में आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर चीज को यूज करते हुए जो है ना वो आप पेटेंट्स बनाते जाओ, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज बताई गई होगी, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, जैसे आपका रूल ऑफ नेचर आ जाता है, ठीक है। एक एक चीज आती है नेचुरल थिंग्स आ जाती है, एक टाइप होती है नेचुरल थिंग्स होती है, एक एक होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ठीक है। इन तीन चीजों पे जो है ना वो पेटेंट्स नहीं लग सकता। लाइक रूल ऑफ नेचर, आप हवा हवा ये इसके अपने रूल हैं, ठीक है। एनर्जी, हवा, ये तमाम चीजों के अपने रूल्स हैं, इन पे आप पेटेंट नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी थी, ठीक है। नेचुरल थिंग्स आपका मिट्टी हो गया, पानी हो गया, इनके ऊपर आप जो है कोई ऐसी चीज यानी कि इनको यूज करते हुए कह रहे हो ओके ठीक है दिस इज माय थिंग, तो इट्स इट माइट कम इनटू द डिस्कवरी, लेकिन ये कोई आपका पेटेंट नहीं आता, ठीक है। इट्स नॉट एन इन्वेंशन। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में आपकी कोई ना कोई फिलोसफी आ जाती है, आपकी कोई मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना। ये चीजें जो है इन चीजों पे आपके पेटेंट्स नहीं बनते हैं। आपका पेटेंट अगर किसी भी चीज का अगर पेटेंट बनाना ना, तो वो दो चीजें होनी चाहिए, मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था, वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले अब तक कहीं भी उसका कोई भी जिक्र या फिर कोई भी इस तरीके की एग्जिस्टेंस ना हो, यूनिक होनी चाहिए, हर लिहाज से यूनिक हो, ठीक है ना। वो पहले किसी ने इन्वेंट ना की हो, ठीक है। और दूसरी चीज वो आपका कोई ना कोई उसका यूज भी हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको बना के बैठ जाओ कि ये चीज पहले किसी ने नहीं बनाई, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस वो वाकई में आपकी आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी जनरल पब्लिक के लिए यूजफुल नहीं होगी, ठीक है ना। सो दिस थिंग कम इनटू द पेटेंट, ठीक है। और इसे सॉरी undo this thing, okay, so let's suppose कि if we talk about the copyrights, ठीक है। तो कॉपीराइट भी क्या करता है, आपके आइडियाज को, आपकी इंटेलेक्चुअल तक को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, नॉर्मली इसके बारे में जो है या ये नॉर्मली कॉपीराइट्स कब तक होते हैं, यानी कि जिस पर्सन ने अपनी किसी पर्टिकुलर चीज पर कॉपीराइट्स लगवाए हैं, तो जब तक वो जिंदा रहता है ना उसका कॉपीराइट भी जिंदा रहता है, और आफ्टर उस पर्सन के बाद 70 ईयर्स तक जो है ना वो नॉर्मली उसका कॉपीराइट चल रहा होता है, ठीक है ना। मीन्स के इफ ही इज अर्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो बाद में उसके जो बाद की जनरेशन होंगी वो एटलीस्ट 70 ईयर्स तक जो है वो उस पर कॉपीराइट लगा रहेगा। उसके बाद जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, उस चीज़ों पे ये हट जाती हैं चीज़ें, कॉपीराइट्स नहीं रहते, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ आपके पास इनफैक्ट आपके सॉफ्टवेयर्स भी जो है वो पेटेंट में फॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सो जो जो और उस पर कॉपीराइट्स भी लग सकते हैं। तो जो आपका ट्रेडमार्क है वो फॉर एग्जांपल देयर इज एनी ब्रांड, ठीक है, कोई ब्रांड है, ठीक है, उसका नाम है, उसकी कोई पहचान है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी इन चीज़ों पे ट्रेडमार्क लगवाएगा। डेफिनेटली उसका कोई नाम होगा, उसने कोई सिंबल यूज़ किया होगा, उसकी कोई डिवाइस होगी उस चीज़ पे, ठीक है ना। ये कोई नाम उसकी तरह का कोई यूज ना कर ले, ठीक है। कि हर हर प्रोडक्ट की एक अपनी अलग पहचान होती है, वो अपनी अलग पहचान अपने नाम से भी बनाता है, कोई खास सिंबल को यूज करते भी बनाता है, किसी खास तरह की आवाज को भी बनाता है। बाकी ये मोबाइल फोन ऑन होते हैं, सैमसंग, नोकिया, ये तमाम जब ऑन हो रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, इनकी अपनी खास होती है पहचान, तो इन पे इनके ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट कलर पे भी कोई कलर जो है वो आपकी तरह का प्रोडक्ट का कोई कलर ना यूज कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो मैकडोनल्ड का साइन है, मैकडोनल्ड का कलर है, ये उनकी एक पीछे साइकोलॉजी है जो इस पे वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कोका कोला की बोतल की जो शेप है,
वो उसने अपनी शेप पे जो है वो ट्रेडमार्क लगवाया हुआ है, उसकी शेप, वो जो शेप है वो अपनी कोका कोला की जो ब्रांड की शेप है वो उसको उस ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। यानी कि वो ट्रेडमार्क ना होता तो उसकी तरह की बाकी भी शेप्स बना, पेप्सी भी उस तरह की बना लेता, ठीक है ना। लेकिन कोका कोला की खास शेप है, उसकी शेप को जो है वो कोई कॉपी नहीं करता है, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली अगर आपको एक ओवरऑल बताया जाए तो पेटेंट के बारे में जब भी नाम आएगा तो पेटेंट इज आपको हमेशा किस पे मिलता है, इन्वेंशंस पे मिलता है, ठीक है। कॉपीराइट्स आपको किस पे मिलते हैं, कोई भी आपने कोई क्रिएटिव चीज प्रोड्यूस किया उस पर आपको कॉपीराइट्स मिल रहे होते हैं, ठीक हो गया। और जो आपका ट्रेडमार्क है वो भी आपका कोई नेम सिंबल या लोगो हो गया, इस तरह की चीज़ों पे आपका कॉपीराइट मिलता है। तो नॉर्मली ये चीज़ें जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज करवा रही होती हैं कि जी हमने अपने आप को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसमें सब आपके पास जो है वो बिजनेस ऑनर्स आ जाते हैं। बिजनेस ऑनर्स जो हैं वो उनका कोई आइडिया होता है, कोई उनकी प्रोडक्ट होती है जिस पे वो पेटेंट लगवा रहे होते हैं, ठीक है। कोई कोई रिसर्च साइंटिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। रिसर्च साइंटिस्ट जो है वो कोई न्यू कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है ना। कोई न्यू फार्मूला प्रोड्यूस करवा रहा होता है जिसपे एक बड़ी थ्योरी, जिसपे एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बेस कर रही होती है, तो वो उसके ऊपर जो है वो पेटेंट लगवाता है ताकि उसको कोई और ना यूज कर सके या चुरा सके या स्टील कर सके। जो आपके प्रोफेशनल एम्प्लॉयज होते हैं, प्रोफेशनल पीपल होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर कोई न्यू आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाता है, कोई न्यू चीज इन्वेंट करते हैं तो वो उसके ऊपर पेटेंट लगवाते हैं ताकि उसको कोई यूज ना कर सके, ठीक है। सो इसलिए ऑलवेज कहा जाता है कि जब भी आपको कोई ऐसा आइडिया आता है तो अनटिल अनलेस आप उसके रजिस्टर ना करवा लें, आप उसको कहीं राइट अप ना दें, उसका कहीं भी जो है वो आप उसको फुल फ्लेज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज देना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसकी फुल फ्लेज आप थ्योरीज ना प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और जो ये मास्टर्स या फिर पीएचडी होल्डर्स होते हैं जो कि पढ़ रहे होते हैं, इनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिसपे ये रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये पेटेंट लगवाते हैं, ठीक है। और इफ आई टॉक अबाउट यू पीपल, तो आपको आप एज अ स्टूडेंट जो है वो क्या करोगे, लर्निंग कर रहे हो, ठीक है ना, या आप जानना चाह रहे हो कि ओके पेटेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगे वो तमाम इसमें आ जाएंगी। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इनके ऊपर ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर हम इस आउटलाइन को फॉलो अप करें, अच्छा एक एक चीज़ मैं बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताऊंगी। ये जो ब्रांडिंग ट्रेडमार्क्स की इवन उस पे कि जब जब लोग ब्रांड कर रहे होते हैं ना चीजों को, तो कलर्स का बड़ा मतलब हम कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम इन टॉपिक्स में फॉलो करते हैं तब जाके हमें आइडिया होता है कि अच्छा यार इस तरीके से भी होता है, ठीक है। मतलब जब जब वो ब्रांड कर रहे होते हैं चीजों को तो इवन कलर्स भी जो है वो ह्यूज पार्ट रो प्ले करते हैं। यानी कि वो सम टाइम्स का खास किस्म के कलर के कम्बिनेशन को भी वो ट्रेडमार्क रखवा रहे होते हैं कि हमारा ये वाला कलर कम्बिनेशन भी कोई यूज ना कर ले, ठीक है ना। सो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके बेसिक कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, एक कलर है आपका जो है वो येलो कलर है, ठीक है। इवन और कौन सा कलर होता है आपका, ये ऑरेंज कलर आ जाता है, ठीक है। ये हर एक का डिफरेंट मतलब है। आपका रेड कलर होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये पर्पल कलर होता है, ठीक है। पर्पल कलर के बाद आपका जो है ये एक ब्लू कलर इसमें फॉल हो जाता है। ओ आई डिडंट पेस्ट पर्पल कलर, रेड होता है, देन उसके बाद आपका जो है वो पर्पल होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ये ब्लू कलर भी एक इसके ट्रेडमार्क्स कॉम्बिनेशन में आ रहा होता है। सम पीपल यूज द ग्रीन कलर एज वेल, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो एक नॉर्मल रखते हैं, ठीक है ना। वाइट कलर यहाँ शो तो नहीं होगा, बट लेट्स सपोज हम इसको रख लेते हैं कि एक बैलेंस कलर होता है, ठीक है, इट्स नॉट ब्लू में। और कुछ बड़े मजे के होते हैं वो जो आपने देखा होगा, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स यूज करते हैं, यानी कि रेनबो कलर्स, येलो, ऑरेंज, रेड, इन तमाम कलर्स का जो है ना वो कम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है ना। अब मजे की चीज ये है कि ये तमाम कलर्स अपना एक खास इमोशन प्रोड्यूस करते हैं। येलो कलर, जिन जिन ब्रांड्स के कलर येलो है ना, इसका मतलब वो ऑप्टिमिज्म है, वो वार्मथ है, वो क्लैरिटी शो करवा रहे हैं, ये इमोशंस है सारे, ठीक है ना। इफ समवन इज यूजिंग द ऑरेंज कलर तो इसका मतलब वो फ्रेंडली, चेयरफुल या कॉन्फिडेंट चीज, कॉन्फिडेंस को शो करवाता है। रेड कलर जो है वो आपका बोल्ड को, पावर को, एक्साइटमेंट को शो करवा रहा होता है। पर्पल कलर आपकी जो है वो यानी कि क्रिएटिविटी को, वाइज को, अक्लमंदी को, इमेजिनेशन कोई आपकी है उसको शो करवा रहा होता है। ब्लू कलर जो है वो आपको शो करवाता है कि ट्रस्ट को, स्ट्रेंथ को, डिपेंडेबिलिटी को, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये जो कंपनीज होती हैं उनके लोगोज जो आपके लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, ट्विटर ट्विटर देखो उसका जो है वो लोगो ब्लू आपने देखा होगा, ठीक है। तो
ये ग्रीन कलर जो है वो किसको शो करवा रहा होता है, वो आपकी ओके सो somehow all annotation goes away because of some pause. So I was talking about the color. So balance color आपकी neutral या balance चीज़ों को show करवाता है, and then जो आपके mix colors होते हैं वो mixed feelings. So brands yellow color में आपके McDonald आ जाती है, orange color किसका है, Fanta का है, Gulf का है, red color तेरा फाइंड आउट कि कौन लोग रेड कलर डाइवर्सिटी यूज करते हैं, पर्पल जो है वो शुरू में याहू कंपनी पर्पल यूज करती थी, ठीक है ना। ब्लू कलर आपके ट्विटर का है, ओरियो ब्लू कलर यूज करता है, एचपी ब्लू कलर यूज कर रहा था। ग्रीन जो है वो आपके पास जो इस तरह मतलब एवल साइन होता है, जॉन डेरी का होल फूड्स करता है। एप्पल जो है वो बैलेंस कलर यूज करता है, ब्लैक एंड वाइट। कार्टून नेटवर्क बैलेंस कलर यूज करता है, विकीपीडिया बैलेंस यूज करता है, ठीक है। तो न्यूट्रल काम बैलेंस जितनी आती है। डाइवर्सिफिकेशन में आपका ईबे आता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डाइवर्स है, ठीक है। सो देयर व्हेन यू आर हैव मल्टीपल थिंग्स इन यू, तो आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हो। सो कलर्स भी जो है वो ब्रांडिंग में या साइकोलॉजी उनके पीछे जो है वो यही होती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली let's talk about the somehow last topics of this thing. Okay, we knew what IP, we knew the different kinds of IP, we knew what is invention, patent में invention ही काम आ रही होती है, we knew what is patent basically, and then we have the uh, topic to cover patent drafting, ठीक है ना। तो there are different things, so ultimately कुछ जो है वो different steps आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो यस देते हैं, लेकिन somehow जब भी आप किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन को फाइंड आउट करते हो, आपकी खुद की इन्वेंशन होती है, तो डेफिनेटली आप सबसे पहला काम उसको क्या करें कि और फिर वो यूनिक भी है, फिर वो यूजफुल भी है, तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर इनोवेशन को प्रोटेक्ट करवाते हैं, ठीक है, ताकि उसके पास जो है वो सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स आ सकें। और वो राइट्स आपको गवर्नमेंट देती है फॉर द टाइम ऑफ 20 ईयर्स इन एक्सचेंज, ताकि आप पब्लिक को वो डिस्क्लोजर करवाते हो इन्वेंशन को, उससे आने वाली जितनी भी बेनिफिट होता है वो आपको जाता है। तो पेटेंट जो है वो डिफरेंट स्टेप से होकर जो है वो करवा सकते हो। जस्ट गो एंड सर्च आउट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक जो ये काम करती है वो साइट आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीओ के नाम से, ठीक है ना, जो ये काम कर रही होती है। तो बहरहाल जो फॉर एग्जांपल जो आपका पेटेंट को फाइल करता है वो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो आपके पेटेंट ऑफिस पाकिस्तान जो है जो बेसिकली पार्ट है किसका, आईपीओ का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही। और ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की है, सही। तो आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हो, यहाँ इनकी मदद से जो है वो आप अपनी पेटेंट्स को फाइल करवा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे पहले जब आप इनके पास फाइल करवाने लेकर जाएंगे, तो मेक श्योर कि आपने अपनी पर्टिकुलर इन्वेंशन किसी पब्लिक को ऑरली या रिटर्न फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन को फाइल ना किया, अदरवाइज आपका पेटेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर सम स्टेप्स फॉर इट। सो स्टेप नंबर 1 जो है वो इसका आता है कि आपने जो है वो पेटेंट की स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है, ठीक है। पीएस यानी कि पेटेंट की स्पेसिफिकेशन लिखें। तो सबसे पहले आपको पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको पेटेंट स्पेसिफिकेशन लिखनी पड़ती है। उसके अंदर डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया जो उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपने वो एप्लीकेशन मस्ट भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हो, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी है। और हर लाइन के, जिस तरह आपके यहाँ थीसिस की डॉक्यूमेंट में नहीं होती, कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हो। 1.5 की जो है वो आपकी लाइन स्पेसिंग हो बीच में, ठीक है। A4 साइज का पेपर यूज किया हो, ठीक है। और मार्जिन जो है वो आपने 2 सेंटीमीटर की मार्जिन ऊपर से छोड़ी हो, 2 सेंटीमीटर की मार्जिन जो है वो आपकी बॉटम से हो, ठीक है। और 2.5 की मार्जिन जो है वो आपकी राइट और लेफ्ट साइड से हो। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, जिस खास शीट्स होती हैं जिनके ऊपर ये लिखते हैं। तो somehow मतलब आई मीन खास शीट से मेरी मुराद है कि ऐसा नहीं है कि डबल साइड पे होगा, सिर्फ सिंगल साइड ऑफ अ शीट ये जो है ना वो आप थ्योरी लिखोगे, अपनी लिखोगे फॉर्मेट में स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो है वो शुरू कैसे करना है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है टाइटल ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। टाइटल ऑफ इन्वेंशन में आप क्या बताते हो, आप अपना सब्जेक्ट बता रहे होते हो। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि आप किस मैटर ऑफ इन्वेंशन क्या है आपका, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आप एक एब्स्ट्रैक्ट देते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी चल रही होती है।
एब्स्ट्रैक्ट में आपने सिंपल इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टेप्स आपने बताने होते हैं आपकी इन्वेंशन के, और वो मोर आपके सिर्फ 2 पेजेस का होता है वो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इनके 2 पेजेस में आपने सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स अपने इन्वेंशन के बताने कि ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। नंबर 3 पे आपने क्या बताना होता है, फील्ड ऑफ इन्वेंशन आपकी आ जाती है, ठीक है, कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन है, वो किस एरिया से बिलोंग करती है, ठीक है, किस एरिया से बिलोंग करती है। और फिर नंबर 4 पे आपके पास क्या आ जाता है, आपके इन्वेंशन का बैकग्राउंड आ जाता है, ठीक है ना, बैकग्राउंड ऑफ योर इन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल इससे क्या मुराद है कि आपकी इन्वेंशन, वाई योर इन्वेंशन इज नेसेसरी और यूजफुल क्यों है, ठीक है ना, और व्हाट हैज इट डेवलप्ड, और वो किस चीज़ से बनी है और वो क्यों यूजफुल है, ठीक है। नंबर 5 पे आफ्टर, यानी कि मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ आपकी स्पेसिफिकेशन का, ठीक है, कि पहले स्टेप 1 में तो आपको ये पता होना चाहिए ना क्या आपका जो है वो फॉर्मेट क्या होगा। अगर आपको ये पता लग गया तो स्टेप 1 में जो दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए कि आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, लिखोगे किस तरीके से, ठीक है। नंबर 5 पे आपके पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। नंबर 5 पे जाके यहाँ पर आप डिटेल में बताओगे अपने सिस्टम के, अपनी प्रोडक्ट के, अपनी इन्वेंशन के एग्जैक्ट कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके सिस्टम क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, ईटीसी एवरीथिंग एवरीथिंग आप इसमें यहाँ पे डिटेल बताओगे। इवन फॉर एग्जाम्पल इन तमाम चीज़ों से हम क्या साबित करना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स, द सिस्टम्स एंड द मेथड्स, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें जो आपकी इन्वेंशन, फॉर एग्जाम्पल जिसमें वो बंदा जो है वो माहिर है, स्किल्ड है, ठीक है ना, और किस किस चीज़ों को उसने यूज़ करते हुए जो है वो ये बनाई है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इसके अंदर चीज़ आती है जो कि आपकी इन स्लाइड्स के में भी डिफरेंट है। यहाँ पे मैं सबकी बात तो नहीं करूँगी, सब स्लाइड्स को गो थ्रू करके दिखा दूंगी, वो सिर्फ आपका रीडिंग मटीरियल है। नंबर 6 पे आपके आते हैं क्लेम्स, यानी कि इसके अंदर आपने प्रिसाइजली, वेरी प्रिसाइजली जो है ना वो अपनी लीगल स्टेटमेंट्स दी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब वो आप फॉर एग्जांपल वो आपके ये जो सब्जेक्ट नहीं आपने ऊपर लिखा होता कि ओके दिस इज द माय सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि ये मेरी इन्वेंशन का सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए ये चीज़ यूज़ हो रही है और उसके अंदर ये यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। जमा आप जो क्लेम करते हो कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये करेगा, कि ये चीज़ मार्केट में आ जाती है तो उससे ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आपने प्रिसाइज लीगल स्टेटमेंट्स देनी होती है सिंगल सेंटेंसेस की फॉर्म में, दैट डिस्टिंक्टली, ठीक है, डिस्टिंक्टली क्लेम द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। और आपने आय बशानी लगानी होती है, दैट मस्ट बी रिगार्डेड एज द इन्वेंशन। तो आपके क्लेम जो है वो आपके इन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। एंड द लास्ट में 7 में आपके पास जो आ जाती हैं वो आती हैं आपकी ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स ये नहीं है कि आपको खुला पेज दे दिया जाता है कि बेटा जो दिल में आता है करो। आपने यहाँ पे वो ड्राइंग्स जो है वो ऐड करनी होती हैं, डैट इज स्पेशली मे बी नेसेसरी, कि आप उसके थ्रू जो है देख कर आपकी इन्वेंशन के बारे में मजीद मालूमात हो सकती है, मजीद पता हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप जैसे प्रोटोटाइप आपसे बनवाते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये आप जो है वो इस तरीके से काम करेगी, यानी कि वो एक्चुअल वर्किंग में नहीं होती लेकिन आइडिया हो जाता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का जो है वो पिक्चर आती होती है कि अच्छा ठीक है ये प्रोडक्ट जब बनेगी, इन्वेंट होगी तो कुछ ऐसी दिख रही होगी, सही है। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लास्ट में डेफिनेटली जब आप फिर आपका जो है वो एक मेनली स्टेप 2 आ जाता है, ठीक है, सॉरी, मेनली आपका स्टेप 2 आ जाता है। इस स्टेप में आप क्या कर रहे होते हो, स्टेप में जैसी बात है वो आपका होता है फिलिंग द फॉर्म, आपने एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये गवर्नमेंट को दे चुके हो, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके अंदर आपने पेटेंट की एप्लीकेशन बेसिकली जो है ना उसकी डिटेल आप लिखते हो। तो यू मस्ट हैव टू फिल द फॉर्म्स बेसिकली, और ये एक नहीं होते, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट इनिशिएट करवानी पड़ती है अपनी, ठीक है। रिक्वेस्ट इनिशिएट करवाने के लिए एक फॉर्म होता है जिसको नॉर्मली फॉर्म P1 कहा जाता है, ठीक है ना। ये नॉन कन्वेंशन आपकी एप्लीकेशन होती है। और या फिर एक फॉर्म P2 भी होता है, ठीक है ना, ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव द आइडिया। P1 होता है, फॉर्म P2 होता है, ये आपकी कन्वेंशन एप्लीकेशंस के लिए होता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको भी इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो यू नीड 2 कॉपीज ऑफ दिस फॉर्म अलॉन्ग विद द 2 कॉपीज ऑफ योर पेटेंट स्पेसिफिकेशंस। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इसकी 2 कॉपीज करवाएं, जो आपने जो है वो फॉर्म फिलिंग, जो आपने फॉर्म अपनी ये वाली एप्लीकेशन स्पेसिफाई की है, ये वाली जो अभी नीचे जिसके बारे में बताया, 2 कॉपीज इसकी और 2 कॉपीज उसकी, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू सर्च तो आपको मिल भी जाएगा कि फॉर्म पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो समहाउ इसके आगे और भी वर्जन होते हैं कि भाई
फर्स्ट इन्वेंटर जो होता है, अगर वो नहीं फॉर्म एप्लीकेशन फिल कर रहा तो वो फाइल कर रहा, तो वो जो है वो आगे से किसी असाइनी और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन से भी फाइल होता है। सम कंपनीज खुद, जैसे मैंने अभी कहा ना कि ऑथर जो है वो आगे से किसी को ट्रांसफर कर देता है अपने राइट। तो हम यहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं लॉ के, जो कि पेटेंट्स राइट करते हैं, लोगों की सारी ये स्पेसिफिकेशंस राइट करते हैं, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आगे से आपका ये वाला काम करवा सकते हैं, ठीक है। सो मस्ट फाइनली आपका फिर आगे, इफ यू हैव ऑलरेडी फिल्म द फॉर्म P1 फाइल कर चुके हुए हैं, ठीक है ना, और फॉर्म 2 आप फाइल कर चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो फिर एक आपके पास नंबर थर्ड पे आता है कि एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का आपको फॉर्म फाइल अप करना पड़ता है। वो आपका फॉर्म, लेट्स सपोज फॉर्म P3A होता है, ठीक है ना। उसके अंदर आपने कंप्लीट जो है ना अपनी स्पेसिफिकेशन फाइल करनी होती है। और फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो द जस्ट द नेम्स, ठीक है ना, इनकी डिटेल्स पे आप बेशक ना जाएं, ठीक है। आगे होती हैं कुछ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं जो कि आपको फॉर्म P3 को यूज़ करते हुए करनी पड़ती हैं, फिर उसकी भी 2 कॉपीज आपको हर फॉर्म की देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस या फिर चक्कर, तो आप इसके लिए प्रोफेशनल लोग जो है वो हायर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिफरेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने उसके लिए बताया कि अगर कोई जो फर्स्ट इन्वेंटर है, जो एप्लीकेशन फाइल कर है, यानी कि फर्स्ट इन्वेंटर जो है वो आपकी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, तब वो ये वाले फॉर्म फिल करेगी, ठीक है ना। तो अगर वो कोई ऐसी हो जाती है कि कोई एप्लीकेंट जो है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट फिल कर रहे हैं, यानी कि जो फॉर्म फिल करता है उसको एप्लीकेंट कहते हैं ना। तो एप्लीकेंट अगर आपका स्टूडेंट है या फिर किसी एम्प्लॉय है किसी इंस्टीट्यूशन का, जैसे यूनिवर्सिटी होगी या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है ना, तो उसको साथ में जो है वो एक कॉपी एनओसी की भी लगानी पड़ती है इधर, ठीक है। तो ये होता है। देर आर अदर कॉपीज एज वेल। कुछ आपके पास डिफरेंट ऑथराइजेशन पेटेंट अटर्नीज या एजेंट्स होते हैं जो ये काम आपके नॉर्मली कर रहे होते हैं। वो अगर काम कर रहे होते हैं तो 2 कॉपीज उनके भी फॉर्म की लगती हैं। फॉर्म P28 होता है, ठीक है ना। और अगर आपकी कोई पेंडिंग या एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कोई पेंडिंग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो उनकी अमेंडमेंट के लिए भी जो है आपको कुछ फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, जिसको फॉर्म P16 होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको तमाम फॉर्म जो है वो फिलअप करने हैं या तमाम फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू जस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट थिंग, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर मतलब अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो लेट्स मूव कि अगर ये फॉर्म वगैरह अब यहाँ पर आपको डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टेप 2 को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्किप दैट। तो हम स्टेप 3 पे आ जाते हैं। तो फाइनली जब आपको इतनी स्पेसिफिकेशंस पता है, आपने उसके लिए फॉर्म वगैरह की फिलिंग कर ली है, तो अब डेफिनेटली आपको जो है वो फिलिंग फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। अभी तक हम सोच रहे होंगे फ्री में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिलिंग फ़ी जो है वो मस्ट बी पेड इन द फॉर्म ऑफ पे ऑर्डर। आपने पे ऑर्डर की फॉर्म में देना होता है, या फिर जो एक ड्राफ्ट आप जो है ना वो बैंक के थ्रू जो है वो सबमिट करवा देते हो, ठीक है ना। और वो बेसिकली इन दी फेवर ऑफ किसके जा रहा होता है, जो कि आपके आईपीओ है ना, आईपीओ जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना पाकिस्तान की, उसका जो डायरेक्टर जनरल है उसकी फेवर में आप उसके स्केड्यूल बैंक में जो है वो ये डिमांड ड्राफ्ट करवा रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, ये फी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। लाइक अगर आप करके भूल गए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। तो अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो फाइल अप करवा रहे होते तो नॉर्मली रेट्स जो हैं वो 2020 के हिसाब से तो रेट्स ही चल रहे थे 6750 6750, ठीक है ना। अगर आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन सिर्फ करवा रहे होते हो जिसमें आपने बेसिक डिटेल्स जो है वो स्किप की होती हैं, यानी कि ड्राइंग्स और क्लेम्स और इस तरह की चीज़ें आपने स्किप की होती हैं, तो उसकी जो है वो आपकी 2025 जो है ना वो पैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़े मजे की चीज आती है, मुझे याद आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आपके जो स्पेसिफिकेशन होती है ना, ये कितने पेज, इसकी पेज लिमिट होती है, यानी कि 40 पेजेस की जो है ना वो पेज लिमिट होती है। अगर आप इससे बियॉन्ड जा रहे होते हैं ना तो आपको अलग पेज की फी देनी पड़ती है, और पर पेज आपका जो है ना वो 90 रुपीज लग रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको 90 रुपीज चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 45 की है तो आप उतने में ही प्लस कर दो कि आपके 90 रुपीज सेपरेट चार्ज होंगे सेपरेट पेजेस के, ठीक है ना। और अगर आपने आपकी नॉर्मली जो क्लेम्स, ये बात मैंने की है ना यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में, ये वाला पॉइंट नंबर 6 में कि क्लेम्स आप अपनी कंपनी के लिए कर रहे होते हो, तो अगर आप 20 से ज्यादा क्लेमिंग करते हो ना तो पर क्लेम के ऊपर भी आपको चार्ज पड़ रहा होता है 225 रुपीज नॉर्मली,
ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये छुपी छुपाई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सबके पब्लिक है ये, ठीक है। और आपके जो कोई पेंडिंग स्पेसिफिकेशंस अभी मैंने ऊपर बताई है तो ये उसके लिए सेपरेट फ़ी होती है, ठीक है ना। और अगर फ़िलहाल के लिए आपने अपने पेटेंट को सील करना है तो उसके लिए आपकी ये वाली फ़ी होती है, और अगर आप प्रोविजनल करवा रहे हो तो 2750। तो फाइनली अगर आपने सारी फ़ी वी का चक्कर जो है वो परफॉर्म कर दिया है तो फिर आप स्टेप नंबर 4 के ऊपर फॉल कर जाते हो। स्टेप नंबर 4 में आपको जो है वो या तो आप अपने इस एप्लीकेशन को आप मेल करते हो या फिर आप इस अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को हैंड डिलीवर करते हो जाके, ठीक है। मेल करोगे तब भी आपको एड्रेस चाहिए, जब आपने हाथ से जाके पकड़ानी है तब भी आपको एड्रेस चाहिए, ठीक है ना। सो नॉर्मली जो मेरी नोन प्लेसेस हैं जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक तो यहाँ, एक तो आपकी कराची में है वो, ठीक है, कोई सिविक सेंटर है उनका, उनके एरिया के मुताबिक उसने इकबाल है तो वहाँ पे कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स और पेटेंट ऑफिस है, ठीक है ना, न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, तो वहाँ पे कराची में जो है ना ये है। और एक जो है वो आपका इस्लामाबाद में है, आईएसपी में, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ठीक है, IPOHQ। वो आपकी जो वहाँ पे फेमस NTC बिल्डिंग है, ठीक है, सेक्टर G में, सही। तो एक तो वहाँ पर पाया जाता है। हमारे यहाँ लाहौर में जो है वो बेसमेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग जो है, ठीक है, नाम ऐसे चाइना चौक के नज़दीक है, कोई शारा ईवान सनत और तजारत के नाम से ना, तो लाहौर में जो है ये वाली बिल्डिंग है। तो यू हैव टू एक्चुअली सेंड योर एप्लीकेशन मेल और सेंड ओवर योर एप्लीकेशन या हैंड ओवर योर एप्लीकेशन ओवर दीज एड्रेसेस, ठीक है ना। इनकी फैसिलिटेशन यानी कि यहाँ तक कि फैसिलिटेशन के लिए भी IPU यानी कि आपकी ये जो पेटेंट को फाइल करना है या इसके लिए करना है, इसमें भी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो आपकी ली गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब आप जाओगे तो आपको प्रोसेस पता लग जाएंगे कि ओके ये वाला काम आपको इसकी हेल्प से मिल जाता है, ठीक है। फाइनली जब आप को एग्जामिन हो जाता है तो अल्टीमेटली जब मतलब अब फॉर एग्जांपल आपकी तरफ से तो काम खत्म हो गया ना कि आपने सारा काम, अब तो हो गया उन पर्टिकुलर लोगों का काम शुरू हो गया जिनको आपकी एप्लीकेशन मिली है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है, शॉर्ट करके ही, जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो जाती है तो उसको एग्जामिन करता है जो पेटेंट एग्जामिनर होता है वहाँ का, ठीक है। वो थ्रू आउट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रीड करेगा, ठीक है ना। पेटेंट कुछ स्टेट्स होती हैं वो आपकी आप ये जो आपने इन्वेंशन यहाँ पे क्लेम की है अपनी, ठीक है ना, उनको वो नेशनली और इंटरनेशनल डेटाबेसिस पे जाके सर्च करता है कि भाई ये क्या इन्वेंशन वाकई में न्यू है और यूजफुल भी है या फिर ये पहले से जो है वो निकाली गई है, ठीक है ना। तो अगर तो कोई ऑब्जेक्शन या उसको आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी मिलती है, ठीक है ना, आपकी इन्वेंशन में कोई ऑब्जेक्शन मिलती है या आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी मिलती है, तो वो क्या करता है, वो आपको वापस आपका पेटेंट एग्जामिनर जो है ना वो आपको बेसिकली एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करता है, अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई ये मसाइल है तुम्हारे, ठीक है ना। फिर आपको अपॉर्चुनिटी, आप दोबारा इस स्टोरी के अंदर जंप इन करते हैं, ठीक है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस को रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है ना। या फिर आपको जो अगर उसने कोई डेफिशिएंसी क्लेम की है तो आप उस पर या तो ऑब्जेक्टिफाई कर सकें या फिर उनको जो है वो आप फुलफिल कर सकें या फिर डेफिशिएंसी रेमेडीज ले सकें, ठीक है। एट द एंड जाके तब तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी मीट हो जाती हैं तो अनटिल अनलेस आपकी पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, वाह अभी बल्ले बल्ले, ठीक है। पेटेंट एप्लीकेशन आपकी क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, और फिर जो है वो आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो पेटेंट जर्नल में और जो ऑफिशियल गजट है ना, पार्ट 5 गजट, गजट से समझते हो ना, ठीक है, पार्ट 5 उसके अंदर जो है ना वो एडवर्टाइज कर दी जाती है कि ओके ठीक है भाई सही। और फिर एट द एंड ऑफ ऑल दिस जब ये सारा कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको पेटेंट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है, ठीक है। और बेसिकली उस पेटेंट को सील कर दिया जाता है, मीन्स कि नो वन इज गोइंग टू यूज अनटिल अनलेस विद योर परमिशन, या फिर वो आपको लाइसेंस नहीं क्रिएट करवा लेते, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड्स को देखते हो, ठीक है, तो स्लाइड्स में अब डेफिनेटली मैं बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ पे स्लाइड से गो थ्रू करके बताऊँ, ठीक है, मैंने ये सारी आपको फुलफिल करवा दी हैं चीज़ें आउटलाइन, सही। तो यहाँ पर जो है वो आपकी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, हाफ ऑफ द चीज़ें तो ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से ये स्लाइड्स भरी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेंशन का बताया, मैंने आपको बता दिया इन्वेंशन क्या होती है, कोई न्यू चीज़, ठीक है ना। और इस इन्वेंशन पे बड़े मजे की यहाँ पे ड्राइंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। देखो हाफ ऑफ द एग्जाम्पल, अब ये पेटेंट आ गया, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि पेटेंट जो है वो क्या है, सही।
और फिर डेफ पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने इस पे भी बात कर दी कि तमाम इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि नहीं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती जिन पे आप पेटेंट नहीं करवा सकते, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पेटेंटेबल होती हैं, जो यूनिक होती है, यूजफुल होती है, ठीक है ना। आप पेटेंट कैसे गेट कर सकते हैं, ये उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। यू कैन रीड फ्रॉम हेयर एज वेल, ठीक है, स्टेप वाइज मैंने आपको बताया था। तो पेटेंट स्पेसिफिकेशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कुछ एक लीगल फॉर्मेट होता है। ये मैंने स्टेप 1 2 3 करके मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, ठीक है। क्लेम मैंने आपको बता दी, इसके अंदर क्या होता है। आप क्लेम करते हो, अपने इन्वेंशन का स्कोप बताते हो, आप उसकी बाउंड्री लिमिट बताते हो, आप बताते हो कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कुछ क्लेम्स बताए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल क्लेम हम बताए हैं। क्लेम पेटेंट क्लेम का फॉर्मेट उसने बताया है। क्लेम में आप क्या क्या कंप्राइजिंग ऑफ कि ये चीज़ें जो है वो मेरी प्रोडक्ट में होंगी, कंसिस्टिंग ऑफ ये चीज़ें जो है वो मेरी प्रोडक्ट में पाई जाएंगी, ठीक है ना। और कुछ ऑपरेटर्स क्लेम्स होते हैं, कुछ मेथड्स क्लेम होते हैं, कुछ प्रोसेस क्लेम्स होते हैं, कंपोजिशन क्लेम्स होते हैं, बायोटेक्निकोलॉजी क्लेम्स होते हैं, यूज क्लेम्स होते हैं, ऑमनिबस क्लेम्स होते हैं, ब्रॉड एंड नैरो क्लेम्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सारे आपकी क्लेम्स की टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको इन सबको लर्न करना है या ये करना है, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट क्लेम इज बेसिकली, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट होगी उस टाइप के आप लोग जो है वो क्लेम कर रहे होगे, सही। तो एट द एंड जाके उसने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि डोंट यूज सिंपल वर्ड्स, लाइक ये उसने इमेज बताया हुआ है तो आप इसका नाम स्प्रिंग नहीं रखेंगे। यूज सम कीवर्ड्स जो इसको एक्चुअल में डिफाइन कर रहे हो आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है ना। जैसे एनर्जी स्टोरिंग मीन्स, ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस, यू नो। टॉय बॉल आप इसको बोलते हो, दिस इज नॉट अ टॉय बॉल। एक जिसकी एक कंपनी है, जिसकी आई मीन जिसकी प्रोडक्ट है, तो ही इज गोइंग टू से दिस सम sophisticated versus spherical object with the floppy filaments, ठीक है। So these are the things। एंड लास्ट अल्टीमेटली यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि भाई बहुत सारे कुछ लोग नहीं जब पेटेंट करवा रहे होते हैं तो उन काफ़ी R&D प्रोजेक्ट जो होते हैं, आप देखते हो कि उनके पास पेटेंट्स ही नहीं होते, स्टिल वो सर्च होती है बट वो पेटेंट्स नहीं होते, उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया होता। तो दे कांट क्लेम कि ये हमारी चीज़ है, नो वन कैन यूज इट, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यू हैव सम प्रॉपर्टी फॉर दैट। तो इस स्लाइड को मैं आपको कहूँगी एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है ना। तो 80% ऑफ द थिंग्स आपको जो है वो पेटेंट्स में मिल जाती हैं, जिसकी कैसे चीज़ जो है वो बनी है, ठीक है। somehow जो लास्ट में यहाँ पर उसने कोई डायग्राम्स के थ्रू बताया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। और ये आपकी आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर इसने एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसने डिफरेंट ऑफिस दिए हुए हैं और पेटेंट एप्लीकेशन पर ऑफिस दी हुई है कि भाई सेम इन्वेंशन जो हैं वो मल्टीपल पीरियड टाइम्स भी आ सकती हैं, ठीक है। और पेटेंटेड इन मल्टीपल कंट्रीज। इट्स नॉट लाइक कि इस कंपनी का पेटेंट जो है वो पूरी पूरी दुनिया में चलेगा, ठीक है। इंडिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च अबाउट द पेटेंट इन्फॉर्मेशन तो यू हैव टू सर्च अबाउट कंट्री बाय कंट्री, क्योंकि ये वेरी करती है कंट्री बाय कंट्री, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से ये इतनी वीडियो काफ़ी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो हो वो ले सकते हो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेट मी